final session for today, a conversation with Mr. Zafar Masood. If I could invite Waqar Saab again back on stage. Waqar Saab will be moderating this session. Waqarul Islam, for those of you who might not know, has been a corporate leader turned entrepreneur. He's worked in Pakistan and internationally at senior executive positions. Currently, he is director and CEO of Jaffa Business Systems Limited. He wears many hats, such as president and director at Touchpoint, director at Blue Tech Consulting, director ENA Private Limited, and founder Hisab Kitab, and much more. He's an accomplished public speaker and a prominent voice in the tech and entrepreneurial space. Thank you very much for your time, Waqar Saab. He's in conversation with Mr. Zafar Masood. Mr. Zafar Masood is the president and CEO of the Bank of Punjab, the second largest public sector bank in the country. He is a development and social impact focused banker, entrepreneur, and public sector expert with around 30 years of proven exceptional success stories in the banking, development, finance, energy, and corporate governance sectors. Mr. Masood is also an accomplished author. He has under his belt 2 volumes titled Out of the Box, which are a collection of his various newspaper articles, write-ups, and presentations on these topics. His latest book, Leased Breath, based on his musings as an air crash survivor, is presently under publication. I believe he's joining us through an online connection. So, Waqar Saab, please take it away. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, everyone. Thank you, Management Association of Pakistan, for having me in the last session to moderate someone who doesn't need an introduction, but just a bit. So he's known as a miracle man. He's known as a crash survivor. He is known as someone who has experienced something which possibly very few have experienced in the world. He is the Zafar Masood. जी मेरी आवाज आ रही है? Zafar, can you hear me? जी आपकी आवाज आ रही है. आपको हमारी आवाज आ रही है? जी वकार साहब, आपकी आवाज तो हमारे पास वैसे भी पहुंच ही जाती है, मगर इस पर तो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है. Excellent, well done. Thank you. Thank you. Just, as I said in the intro, Zafar has experienced something very few in the world have experienced, very, very few, possibly none in Pakistan. So what we are going to do in the next 30 to 45 minutes, and of course we'll take questions as well, those of you who may have it, is to bring a different perspective, so what many of you may have heard from Zafar, or any corporate leader for that matter. And the perspective is that everyone talks about the plane crash, everyone wants to know what happened, everyone wants to know how he went through the whole exercise, but very few, possibly none, have talked about how his life changed after the plane crash. And how does he apply those learnings into the corporate career that he has now. And it would be great for everyone to learn from someone who is actually experiencing it, as to not just his life may have changed after such a tragic incident, but how it helped him perform and become a far better corporate leader than what he was maybe before this incident. So I would dare to add, this kind of perspective is not just unique and privileged for the audience here, but I don't think it is something that people get to hear anywhere in the world in any forum. So let's just start. And Zafar, before I ask questions and I go into detail, maybe a bit of introduction to the topic that you want to give, and then we'll go into details of the subject we want to cover, which is purely corporate, purely management, purely leadership, with a new dimension that I spoke about. Zafar, over to you. Thank you, Waqar. Thank you very much. पहले तो बहुत शुक्रिया मैप का, अली नकवी साहब का, अदनान रिजवी साहब का, एंड अबव ऑल वकार आपका
मेरे लिए तो आपसे बात करना भी एक लर्निंग है, frankly speaking. By the way, for the benefit of audience, myself and Bakar go back over 20 years. And, it's always a pleasure to be in discussion with Bakar. As Bakar has set the tone here, for, my learnings post the air crash, I have actually written a book on it, but that's in a completely different perspective. That's not in the perspective of a corporate executive. That's more to do in how such incidents have happened in the history and what have been the outcome. And I'm not the unique one in that space. People have been through similar situations and experiences in the past, and based on that, what those learnings are. So when we were preparing for today's session, Vakar had asked me to talk about those learnings and then fit them in, as Vakar said, into my how has that changed my life as an executive, as a professional, and what are those learnings that fit into the corporate culture as well, the management style of the people potentially too. So starting out, the first learning was the arrogance. As we all know, it's the biggest evil. It's the biggest impediment in somebody's own progress and growth, whether it's personal or professional. So, arrogance is one learning that came of this whole thing, because if the pilot was not arrogant enough not to listen to his co-pilot, and there's a message here, by the way, when I say co-pilot, you have to listen to your fellow colleagues too. You have to listen to your subordinates as well. And to the people on the ground, again, there is a message for everybody here. You could have averted this very unfortunate accident. And, because this accident had taken away 98 souls. So we think that, and we believe that it is a great loss to the thing. But छोटे लेवल के ऊपर इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट रोड होते रहते हैं, और हम अपने कॉलीग्स को वो रिस्पेक्ट नहीं देते, उनसे उस तरह बात नहीं करते, अपनी एरोगेंस में रहते हैं, उसका नुकसान हमें पहुंचता रहता है, छोटा मोटा हर वक्त. सो एज एन एग्जीक्यूटिव वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ दैट. जो दूसरी लर्निंग है वो ये है कि जो ड्यूज हैं उस पे हमें अपडेटेड होना चाहिए. अच्छा, बीइंग अ बैंकर मैं तो उसको एडवोकेट वैसे भी करता हूँ ड्यूज को पे अपडेट होना, बट ऑन अ सीरियस नोट, in terms of building your credibility and status in the society and in the organization, it's very important that you remain updated on your dues, both emotionally and financially. देखिए, बात ये कि while हम अपना ज्यादा वक्त जो है वो अपने काम पे गुजारते हैं अपने कॉलीग्स के साथ, और वहां पर जो आपका इमोशनल कनेक्शन है वो रिकग्नाइज करना बड़ा जरूरी है, और उसमें जो कुछ हम उनको ओ करते हैं इमोशनली, वो ड्यू हम पे है और वो हमें उनको देना चाहिए. तीसरी चीज जो है वो ये है गुडनेस. नाउ गुडनेस, जब, और ये मेरी वकार से बात हो रही थी, प्रॉब्ली वकार ये शायद बाद में क्वेश्चन भी मुझसे पूछेंगे, बट गुडनेस वो चीज है कि जो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है फॉर समबडी टू बिकम अ लीडर and a chief executive. जब तक कि आप लोगों की गुडनेस नहीं देखेंगे और उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप उनसे सही तरह उनके स्ट्रेंथ के मुताबिक काम नहीं ले सकेंगे और आप उनको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे. सो गुडनेस इज अनदर लर्निंग. मेरे केस में पर से इन द क्रैश सिचुएशन मैंने वो गुडनेस उन लोगों में देखी जिन्होंने मुझे रेस्क्यू किया और वहां से निकाला, क्योंकि अगर वो मुझे वहां से नहीं निकालते तो आज मैं भी आपके सामने नहीं बैठा होता. सिंसेरिटी, जो चौथी लर्निंग है वो है सिंसेरिटी. वी नीड टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर विद एवरीवन, ourselves, our fellow colleagues, with our customer, and जो हमें चीज बाकी एग्जेक्टिव्स के मुकाबले में और लीडर्स के मुकाबले में कट अबव करती है, वो ये सिंसेरिटी का ही एलिमेंट है. एंड पीपल शुड हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन यू दैट यू आर सिंसियर टू देम. You are somebody that they can rely on,
and they can seek guidance from you, and you will always be there for them whenever they need you in any situation. Then miracles, of course, miracles do happen, but please do not and ever wait for them to happen. अपनी सिचुएशन को इस तरह सर्कमस्टांसेस को डेवलप करके रखिए कि जब देखिए अपॉर्चुनिटी हर एक के रास्ते में आती है, मगर आपको तैयार रहना चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए जब वो आपके पास है. मिरेकल उसके ऊपर हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग हम सबकी जिंदगी में छोटे मोटे मिरेकल्स तकरीबन रोज होते रहते हैं. इनफैक्ट ऑन अ लाइटर नोट, हमारे एक रिश्तेदार हैं जो अमेरिका से आए और यहाँ गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे थे कराची में. उन्होंने कहा यार every single turn there was a miracle happening in this city, and frankly I agree with them. तो हमारे पास भी इस तरह की कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर miracles happened, do happen, but please don't wait for them. Be ready for the opportunity when they come your way to grab and capitalize on it. अगली जो मेरी लर्निंग है वो है विल पावर. अच्छा, विल पावर जो रेजिलियंस जो है वो बड़ा जरूरी एलिमेंट है. जब हर एक जिंदगी में हम सब जो है वो हेडविंड्स को फेस करते हैं, और वो हेडविंड्स को फेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है वो अपने रेजोल्यूट को और कमिटमेंट को ना छोड़ें, और अपने कॉज को, टारगेट को और लार्जर ऑब्जेक्टिव को जहन में रखते हुए उस विल पावर की स्ट्रेंथ के ऊपर इन हेडविंड्स को क्रॉस करते जाएं. अदरवाइज हम हर वक्त जो है वो, अगर विल पावर नहीं होगी तो बहुत छोटी मोटी चीजों पे भी हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, एंड वी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर, और व्हाट इज एक्सपेक्टेड अस टू डिलीवर, व्हाट पोटेंशियल वी हैव टू डिलीवर, विल बी एबल टू डिलीवर ऑन दिस वन. नेक्स्ट वन आर द रिचुअल्स. अच्छा देखिए, रिचुअल्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट दे आर नॉट द एंड और एंड द बी ऑल. हमें रिचुअल से बियॉन्ड जाना पड़ेगा अगर हमें लीडर बनना है, हमें एग्जीक्यूटिव बनना है, और हमें जो है वो बेहतर परफॉर्म करना है देन आवर कंपटीशन. सो 9 to 5 आना एक रिचुअल है, लेकिन 9 to 5 के अंदर रह के डिफरेंट तरीके से काम करना, और 9 to 6 जो काम करना है वो शायद रिचुअल से बियॉन्ड है. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी ऑल नीड टू लर्न, कि रिचुअल्स आर इंपॉर्टेंट, बट इन आवर एग्जीक्यूटिव लाइव्स इट इज बियॉन्ड रिचुअल्स दैट वी नीड टू गो इन ऑर्डर टू बी अ गुड लीडर एंड एग्जीक्यूटिव. आठवीं जो मेरी लर्निंग है वो है कि बोल्ड स्टेप्स. नाउ जिसको कहते हैं ना बॉयज टू मैन ग्रेजुएशन, वो बॉयज टू मैन ग्रेजुएशन होती ही उस वक्त है जब आप बोल्ड स्टेप लेने की पोजीशन में होते हैं और ले पाते हैं. अब मेरा यहां बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप बोल्ड स्टेप लें बिल्कुल अंधाधुंध, बिल्कुल नहीं. प्लीज मूव इन अ वेरी कैलकुलेटेड फैशन and determine your loss threshold levels, and remaining within that take the bold steps. अगर आप bold steps जिंदगी में नहीं लेंगे, then you will be another ordinary executive or manager, and you will not be able to make any difference in other people's life or in your life for that matter, or make an impact. My second last learning is communication. बहुत important अमर है. You need to be articulate. प्लीज अपनी लैंग्वेज पे कमांड करने की कोशिश कीजिए. अपने आप को तैयार कीजिए. एक होमवर्क करने का जो कॉन्सेप्ट है कि आपने क्या कहना है और किस वक्त कहना है. कोई जरूरी नहीं है कि आपने हर चीज का रिस्पॉन्ड करना हो, बट जब आपने करना है तो आपने तैयारी के साथ करना है. और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन बड़ी ससेंट हो, बड़ी टू द पॉइंट हो, और टारगेटेड हो towards what people are looking for. And this is what is important for the continued success for anyone. Communication, it's clear-cut articulation, command on language, command on the subject. आखिरी जो मेरी लर्निंग है, और वो बहुत जरूरी है, जिस तरह बाकी थी वो भी बहुत जरूरी थी, मगर ये in a way is a derivative of all of the above, is the legacy. तो जो legacy है वो आपने अपने जहन में बड़ा क्लियर होना है कि how you want people to remember you after you are once you are not in their lives. जब आप उनकी जिंदगियों में एग्जिस्ट नहीं करते होंगे तो आपको कैसे याद रखना चाहते हैं, और उसके हिसाब से ही आपकी सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो फ्लो थ्रू होगी.
और इसके लिए जो लेगेसी छोड़ने का जो है ना मामला, उसके लिए कोई आपको चीफ एग्जीक्यूटिव या सी स्वीट लेवल का एग्जीक्यूटिव होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी लेवल पे कोई भी काम कर रहे हो, यू कैन लीव अ लेगेसी बिहाइंड। मैं इतनी सारी एग्जाम्पल सोच सकता हूं आज कि जहां पर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था, जहां पर एक टी बॉय था, वो टी इतनी जबरदस्त तरीके से सर्व करता था कि ही लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन मी। हालांकि बहुत छोटा सा काम कर रहा था, मगर आज भी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। और मैं ये समझता हूं कि हम सबको ये जहन में रखना चाहिए कि वी मस्ट डू वट एवर वी हैव टू डू in the best possible way with the objective of leaving a legacy behind. Because these are my 10 learnings which I Thank you, Zafar. Thank you so very much. Great intro. Lots of great points. I'll just pick a couple of them. The first one was humility or arrogance you talked about. और उसको मैं दूसरे अगर एंगल से देखूं तो ह्यूमिलिटी, जिसे हम उर्दू में इनकसारी कहते हैं। अब इनकसारी का एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है कि इनकसारी का मतलब ये है कि आप ज़मीन पे हैं। और बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी में आगे जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में पिटफॉल्स भी आते हैं, फिर वो गिरते भी हैं। तो अगर आप ज़मीन पे हैं और खुदा न खास्ता आप गिर गए तो आपको चोट नहीं लगती, क्योंकि आप पहले ही ज़मीन पे। सो दैट इज़ वेयर ह्यूमिलिटी और लैक ऑफ एरोगेंस इज़ सो क्रिटिकल। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की ज़फ़र ने, जो ड्यूज़ की बात है, जो हम नहीं करते। ड्यूज़ का ताल्लुक़ सिर्फ पैसों से नहीं है। ख़ास तौर से जिन लोगों ने अल्लाह ने ओहदे दिए या अल्लाह ने इस काबिल किया कि वो दे कैन ब्रिंग गुडनेस टू द वर्ल्ड, उन पे बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। और वो जिम्मेदारी हर तरह की है। वो फ़ैसलों की जिम्मेदारी है कि आपके फ़ैसले से किस तरह से लोग इम्पैक्ट होते हैं, आपके उन पे कर्ज़ हैं कि आप उनका ख्याल रखें। तो उन ड्यूज़ का ज़रूर ख्याल रखें। विल डेल्व इन टू मोर, बट ज़फ़र आई वॉन्ट टू मूव towards your corporate career, and whatever answer you give, I would just like you to keep a pre and post comparison in mind कि पहले क्या था और अगर वही चीज़ आपको अब करनी पड़ती आफ्टर दिस इंसिडेंट तो क्या फ़र्क होता। तो ये सवाल किसी भी कॉर्पोरेट लीडर से पूछा जाता है और बहुत सारे लोग बताते हैं। सो सवाल काफ़ी ट्रेडिशनल सा है, बट आई जस्ट वॉन्ट दिस एंगल टू कम इन. What are, in your views, maybe out of these 10, maybe few new ones, what are, in your things, top 3 things young people, aspiring leaders should remember, or you will pick, which are critical to get to the C level? Not when you get there, but what are the 3 top things you will pick from your career, जिसकी वजह से आपका ख्याल है कि आप C level पे माशाल्लाह पहुंच गए। और अगर आपको वही सफ़र दोबारा आज शुरू करना पड़े बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस, वुड यू डू इट एनी डिफरेंट? ज़फ़र? नहीं, बड़ा आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। और वो मैं कोशिश करूंगा उनको दोनों को लिंक भी करूँ आपस में। पहले तो वकार, जो आपने 2 बातें की हैं उनको अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन पर एक कमेंट करना चाह रहा हूँ। जरूर। एक तो ये ड्यूज वाली जो आपने बात की, बिल्कुल सही पिक की है आपने बात। टू माय माइंड व्हेन आई से ड्यूज, दीज आर नॉट द फाइनेंशियल ड्यूज, दीज आर द इमोशनल ड्यूज। एंड ट्रस्ट मी, ये इमोशनल ड्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन द फाइनेंशियल ड्यूज। आप एक आदमी को अगर अगर उसका इमोशनल एक एक्सपेक्टेशन है वो पूरी कर देंगे और उसकी तनख्वाह आप 10 दिन देर से भी दे देंगे तो वो उसको बेयर कर लेगा। लेकिन अगर आप जो है वो उसकी तनख्वाह टाइम पे देंगे, उसको 4 दफा गालियां देंगे और उसकी इमोशनली उसको हर्ट करेंगे, तो ट्रस्ट मी, ही विल नेवर बी थैंकफुल टू यू और फॉर दैट मैटर सेटिस्फाइड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पिक्ड अप एंड थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग इट। जो दूसरी वाली आप बात कर रहे हैं, वो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत करीब से देखा है। मेरी फैमिली में बहुत लोग ऐसे हैं, वकार, यू नो देम, कि जो बड़े मशहूर हैं अपनी जिंदगी में, उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। मगर उनकी जिंदगी में जो मैंने एक चीज नोट की है, जो आपने एरोगेंस वाली बात की, ये उल्टी है। यानी कि एक तो ये हम कर रहे थे ना बात कि आप अगर एरोगेंट नहीं होना चाहिए, दूसरा ये कि जब आप बड़ा आदमी बनता ही वही है जो एरोगेंट नहीं होता। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि एरोगेंस जो है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्री रिक्विजिट फॉर यू टू बिकम somebody who is different from the others, somebody who can make a difference
in his own life and others, ये starting point है, ये एक basic ingredient है to begin with for anything else. Now the three things that you talked about, उसमें जो सबसे important चीज मेरी जिंदगी में रही वकार, एंड कई दफा मैं अपनी करियर में फायर होते होते भी बचा हूं उसकी वजह से, Thank you. वो ये कि वो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप और जो एबिलिटी टू टेक रिस्क है, वो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट अमर है. अच्छा, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है वो अपने ही काम करते हो तभी आप एंटरप्रेन्योर होंगे. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है डिसीजन मेकिंग एट एनी लेवल इन योर कैपेसिटी एंड विद इन योर ओन राइट्स. हमारे पास 99.9% केसेस के अंदर अपॉर्चुनिटी टू टेक द डिसीजन ऑन आवर ओन इन द जॉब एज वेल एज एग्जीक्यूटिव्स, बट हम वो नहीं करना चाहते बिकॉज आई थिंक हमारी डेफिनेशन बड़ी क्लियर नहीं है एज एन एंटरप्रेन्योर. Trust me, you have enough leeway to take the decisions, but you should have the capacity to take those decisions and take the losses that are potentially come through with that decision. उसको आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा कि किसी भी सूरत में जो लॉस है वो आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो, कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो कहीं भी ऑन द वे व्हेन यू आर टेकिंग दोज डिफिकल्ट बोल्ड डिसीजंस. सो एक जो मेरी लर्निंग है वो ये थी कि बोल्ड डिसीजंस जो हैं, जो बाद में रीइंफोर्स हुई. वकार, जो आप बात कर रहे थे, मेरी बहुत सारी लर्निंग्स ऐसी थी जिनके बारे में मैं टेंटेटिव था बिफोर माय एक्सीडेंट, बट पोस्ट माय एक्सीडेंट वो रीइंफोर्स हो गई बहुत सारी बातें और कंफर्म हो गई कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सो एक तो वो लर्निंग हुई है. अब जिस तरह ये एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात है, गालिबन मुझे अंदाजा था कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है कितनी इंपॉर्टेंट होती है करियर में, because my career growth has been pretty swift, and if I look back in my career, I see this entrepreneurship or bold decision making as the key. और वो confirm हो गया after the crash कि yes, it is something that makes a difference between you and getting to the top level. दूसरा ये वकार, and I genuinely believe in this. You have to trust people. You have to respect people. You have to tolerate their weaknesses and nuances. You have to be very sincere and honest with them. और ये जो मेरी एक लर्निंग सिंसेरिटी की आई है वो यही है कि if you trust on them, you give them enough leeway to make mistakes and work with them for their own improvement, then I think that helps in your career, in your own growth too. And that's my second sort of learning. आपने 3 बातें की थी. Second जो मेरी important learning है वो sincerity with people है. चाहे वो लोग हों, चाहे वो आपके अपने लोग हों या customers हों. मैंने तो एक और चीज वकार देखी है कि बहुत दफा ऐसा हुआ है कि कस्टमर आपके पास आया है, उसने आपसे सिंसियरली एडवाइस मांगी है और वो एडवाइस आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही थी, मगर क्योंकि उसने आपसे एडवाइस मांगी, आपने उसको वो एडवाइस दे दी, तो उसके बाद कभी ना कभी वो आपके पास हमेशा वापस आएगा और वो आपको ऐसी भी अपॉर्चुनिटी देके चला जाएगा जो अदरवाइज आपको नहीं मिलनी थी. और जो पहली वाली अपॉर्चुनिटी आपने फोरगो की थी इन सिंसियरिटी विद हिम, ये उसने ज्यादा बेनिफिट आपको दे दिया देन व्हाट यू कुड हैव गॉटन अर्लियर. सो ये सिंसियरिटी का जो एलिमेंट है, ट्रस्ट इन पीपल का एलिमेंट है. आई नो मेरे साथ कई दफा ऐसा हुआ है कि पीपल गॉट अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन बट दे डिसाइडेड टू स्टिक अराउंड because of many other reasons, including the sincerity with which I dealt with them. Then, बहुत important element ये है कि आपने जो है वो तैयार रहना है कि आपने जिंदगी में sacrifices देनी है. Sacrifices दिए बगैर बात बनती नहीं है, चाहे वो personal sacrifices हो या professional sacrifices हो. और आपने जो है वो प्लीज वो ही अपना करियर चूज करना है जो आप करना चाहते हैं. अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा टू वर्क हार्ड, टू वर्क स्मार्टली, टू वर्क डिफरेंटली एंड एक्सेल. एंड बेसिकली जो मेरी क्रैश के बाद लर्निंग है वो यही है कि गोइंग बियॉन्ड द रिचुअल्स एंड डूइंग समथिंग डिफरेंट. वो आप उसी वक्त करेंगे कि जब आप वो चीज करना चाहते हैं, आपका हार्ट एंड माइंड आर बोथ इन सिंक विद इट. अगर वो नहीं होगा
तो फिर आप वो वकार आपसे जसारत कर रहा हूँ, जॉन साहब का जो मिसरा है वो कि नौकरी तो कर रहे हो तुम, नौकरी तो कर रहे हो, कुछ काम भी कर लो। तो लिहाजा वो उसी वक्त होगी कि जब आपका हार्ट एंड माइंड इज इनटू द थिंग दैट यू आर डूइंग। थैंक यू जफर, दीज आर ग्रेट इनसाइट्स। जैक वेल्च की एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है विनिंग, तो मेरा मशवरा Yes. होगा कि ज़रूर पढ़ें लोग। उसमें एक उसने बड़ा कमाल का जुमला लिखा है जो जफ़र ने भी जिसका तस्करा किया। देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एनी गुड प्रोफेशनल, it is expected that he will do what he is supposed to do. If you are not doing what you are supposed to do, you shouldn't be in the organization or you shouldn't be in the role. But then what differentiates you? What differentiates you from others who are your peers or who have started your career with you? That is the things which you do, which you are not told to do. तो जैक वेल्च इसको सम अप ऐसे करता है कि सक्सेसफुल पीपल राइट देयर ओन जॉब डिस्क्रिप्शन। उनको जॉब डिस्क्रिप्शन की परवाह नहीं होती, दे गो अबव एंड बियॉन्ड, जो जफर ने भी बात की है। सो दैट्स क्लियरली अ ग्रेट इनसाइट। और आप ये देखें कि किस तरीके से एक इंसिडेंट के बाद some of the things that you are doing, but you become lot clearer in them as you move into the career. So great insight Zafar, thank you so very much. थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, आपने ज़बरदस्त काम किया, you were bold, you were entrepreneurial, you took risks, you were extremely credible and sincere, and those of you who know you and your family will of course say this literally with hand on their heart. अब आप पहुंच गए इधर, अब क्या करें कि इधर ही रहें या इससे नेक्स्ट स्टेज पे जाएं, और क्या उस लर्निंग में भी कोई फ़र्क है? सो हाउ डू यू सस्टेन दिस टॉप लेवल पोजीशन, और हाउ डू यू थिंक ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड इज इट एनी डिफरेंट प्री क्रैश एंड पोस्ट क्रैश, और यू थिंक द इंग्रेडिएंट्स स्टे द सेम? या सो एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे केस में है वकार, वो ये है कि फ्रेंकली स्पीकिंग nothing is important in life after the crash for me. You know, it's easier said than done, but frankly, सच्ची बात ये है कि after the crash I realized कि it is only your relationship with the people that stays behind, and that's the most important thing. No money, no status, no position. जब वो 6 लोग मुझे रेस्क्यू कर रहे थे जहाज के रैकेट से, जहां पर आग लगी हुई थी और जहाज ऊपर से गिर रहा था, उनको नहीं पता था कि ये बंदा कौन है, एंड दे डिड इट इन द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट, एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज, और सब्सिक्वेंटली जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, जिस तरह मैं लोगों से देखा उनका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स मी, दैट चेंज द एंटायर पर्सपेक्टिव फॉर मी कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, व्हाट इज नॉट, एंड स्टेइंग एट द टॉप frankly speaking is less important for me than making the difference in people's life, चाहे वो लोग मेरे साथ कांटेक्ट में डायरेक्टली आ रहे हैं या इनडायरेक्टली आ रहे हैं। सो अगर हम इस माइंडसेट में आ जाएं तो गालिबन बहुत आसानी हमारे लिए हो जाएगी और पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि उस टॉप लेवल पे रहने के लिए हमें क्या वो अवामिल क्या वो अमामिल हैं जो हमें अमाल हैं जो हमें करने हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो एक डिफरेंस लेके आ सकेंगे। या यू कैन इवन गो ऑफ लेवल फर्दर, नॉट नेसेसरली एज द सीईओ ऑफ अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, बट विद इन दैट सीईओ यू आर मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। सो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो है मेरा ये कि मेरी एक बल्कि थ्योरी है पूरी वकार, मैनेजमेंट बाय एम्पैथी। I believe that you have to be very empathetic with people in making decisions. अब empathetic with decision को लोग जरा थोड़ा सा एक गलत जुमरे में भी ले लेते हैं। वो समझते हैं कि जब मैं empathy कह रहा हूं तो मैं उनको लीवे दे रहा हूं कि तुम मिस्टेक करते जाओ और मैं तुम्हें, ऐसा नहीं है। empathy का मतलब है you do give people a chance, but at some point in time you have to draw a line and have to tell them very clearly that look, I've been very empathetic with you, but I can't be empathetic with the other people
who are doing better. You can't be at the same level. You either have to improve yourself or you have to move on in life. So empathy means that you have to give chance to people, work with them for improvement, and I think this is what makes the difference. And this is what I say when I say goodness in my learnings. जो मैंने आपको बताया कि जो लोग मुझे वहां से निकाल के गए थे, मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट अमर है फॉर somebody to stay on the top. Number 2, जो हमारा, और वो एरोगेंस में हमने थोड़ा सा कवर भी किया, बट मेरे ख्याल से जब आप टॉप पे चले जाते हैं तो वहां आपको और ज्यादा अपने आप को ओपन करना होता है फॉर लर्निंग्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट. और जिस तरह ये दुनिया इवॉल्व कर रही है, जितनी तेजी से वो इवॉल्व कर रही है, मुझे तो कोई इसमें जरा सा भी आर नहीं है कि जो मेरी नीस है 6 साल की, उसको मुझसे ज्यादा पता है कि इंस्टाग्राम कैसे ऑपरेट होता है देन माई सेल्फ. तो मुझे क्या तकलीफ है कि मैं उससे ना पूछूं? वाई कांट आई रीच आउट टू, वकार आप तो बहुत सीनियर हैं, वाई कांट आई रीच आउट टू somebody who is an expert on AI जिसका मुझे नहीं पता, और मैं उनसे पूछूं और लर्न करूं. Now that is what has helped me in staying on the top and making a difference. अगर मैं अपने आप को क्लोज कर लूंगा और मैं अपने आप को ओपन नहीं करूंगा for learning, then that is the point where the disaster will start. And lastly, I think communication is a very important element. Communication of thoughts, ideas, and how you like to execute it. The credibility and sincerity in your communication is something which is again is an essential part of staying on the top and making a difference. Great, Zafar, thank you so very much. इंसान की ज़िंदगी में लोगों की कितनी अहमियत है? आप आखिर में, जो ज़फ़र ने शुरू में भी बात की थी, क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? जो लोग ज़िंदगी में प्रोग्रेस करते हैं, जो लोग याद रखे जाते हैं, वो इम्पैक्ट डालने की वजह से याद रखते हैं. सो पीपल हु आर एट अ सीनियर लेवल, दे एग्जिस्ट बिकॉज दे हैव मेड एन इम्पैक्ट इन द पीपल्स लाइव्स. एंड यू कैन टेक मैनी एग्जाम्पल. मैं आपसे अगर पूछूँ ना कि पाकिस्तान में पिछले 76 साल में किस बंदे ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, मेरा नहीं ख्याल है कोई भी नाम बता पाएगा. लेकिन मैं पूछूं किसने इम्पैक्ट डाला, आपके जहन में बहुत सारे नाम आएंगे. अब्दुल सत्तार ईदी का नाम आएगा, प्रोफेसर अब्दुल सलाम का नाम आएगा, अदीब रिजवी का नाम आएगा, एक आध नाम और भी है वो मैं ले नहीं सकता वरना अंदर हो जाऊंगा. और भी नाम आएंगे, लेकिन इम्पैक्ट याद रख. आप स्टीव जॉब्स को, बिल गेट्स को, जेफ बेजोस को, इलॉन मस्क को इसलिए याद नहीं रखते कि उनके पास पैसे कितने हैं. आप इसलिए याद रखते हैं कि आपने इम्पैक्ट डाला. तो ज़िंदगी में हर कोई ये याद रखे कि आप ये देखें आप इम्पैक्ट क्या डाल रहे हैं, हाउ यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट. एंड वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू डू इट, एज जफर सेड, इज टू बी क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट एंड सिंसियर टू पीपल. And that's very critical. And as you go up in life, it becomes that much more critical compared to what it was when you were possibly growing up in your career, right? Be open to learning. सीखें. ये समझना कि मुझे अब सब पता है is a death of a professional. I don't care which level he exists. So you got to be very open to learn. You got to be very open to seek knowledge. और आज मैं सुबह एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का आर्टिकल पढ़ रहा था. उन्होंने कहा कि आज के दौर में जो एवरेज लाइफ ऑफ अ स्किल है वो 5 साल है, राइट? और उनका ये ख्याल है कि अगले 3 से 4 साल में ये टाइम शॉर्टन होके 5 साल से 2 साल रह जाएगा. तो जो आपकी स्किल है वो 2 साल बाद उसने नहीं रहना. तो अगर आपने रीस्किल और अपस्किल नहीं किया अपने आप को, यू आर डन. तो हमारे जैसे लोग चंद बेसिक स्किल्स के साथ बड़ा करियर गुजार गए, राइट? जो यंग बच्चे हैं वो नहीं गुजार रहे. सो यू गॉट टू बी रिडिकुलसली ओपन टू लर्निंग, ruthlessly open to learning. So great insight. अच्छा जफर, एंड देन आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन. एक सवाल जो ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा, एंड देन विल सी इफ ऑडियंस हैज सम सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू. जब आप इस लेवल तक पहुँचते हैं या पहुँच जाते हैं, प्रेशर्स बहुत होते हैं, राइट?
one of the reasons you do go up is your ability to handle pressure. And of course, you have first-hand experienced it as part of the crash, but even as part of the life, जिंदगी में प्रेशर हैंडलिंग कितनी ज़रूरी है और किस तरीके से आप उस प्रेशर्स को मैनेज करते हैं जो आते हैं. कई दफ़ा कुछ समझ नहीं आती, पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी तरफ देख रही होती है, यू आर लॉस्ट सम टाइम एज वेल, you don't know what to do, but you have to act in a different way, and there are so many things. So very critical to handle pressure. कैसे handle करते हैं, क्या करते हैं, क्या different करते हैं? रिसेंटली हमने कोविड में देखा था, जिस तरह आप कह रहे हैं, ये कोविड में यही हुआ था ना, कोई प्रेसिडेंट्स अवेलेबल नहीं था, everybody was looking as the CEO to make a decision and take things on from there. Because the starting point for a leader and the biggest requirement for him to be a leader is to learn to take the pressure. अच्छा, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि प्रेशर, ये तो कहना आसान है, ये प्रेशर बिल्ड कहाँ से होता है और आप किस तरह इसको बियर कर सकते हैं. तो जो प्रेशर है वो एमिनेट्स होता है फ्रॉम द फियर. नाउ इट कुड बी अ फियर of losing the job. It could be a fear of losing the face in your opinion. It could be any loss possible that puts the pressure on you कि यार मुझे इसको बचाने के लिए ये डिसीजन लेना पड़ेगा. एंड उसी चक्कर में बहुत दफा ऐसा होता है कि you don't say the things that you're required to say to alleviate that pressure, to alleviate that pressure. And I think the starting point is to be to eradicate that fear from your system. जब मेरा क्रैश हुआ था तो मैंने ये डिसाइड किया था कि जब मैं पहली दफा ट्रैवल करूंगा, जो मैंने ट्रैवल किया 4 महीने के बाद, तो आई विल ट्रैवल ऑन PIA, द सेम seat on the same flight going back to Lahore. Not because of anything else, only because I wanted to get that fear out of my system, because I didn't want to live with the fear कि मैं अब कभी भी फ्लाई नहीं कर सकता, और मैं खास तौर से PIA से फॉर एग्जांपल फ्लाई नहीं कर सकता, और या मैं उस सीट पे बैठ के फ्लाई नहीं कर सकता. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. अगर आप वो निकाल देंगे तो आपकी प्रेशर जिंदगी के बहुत हद तक सबसाइड हो जाते हैं. नाउ उसके मैनेज करने के और बहुत सारे तरीके हैं. फॉर एग्जांपल, आपने एक पर्सपेक्टिव को मेंटेन रखना है, आपने क्लैरिटी ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखना है. अगर आपकी जहन में क्लैरिटी होगी कि आपको आपका पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ के अंदर या काम के अंदर, तो आप प्रेशर को भी उसी तरीके से हैंडल करेंगे. और जो अननेसेसरी प्रेशर है उनको वैसे ही आप साइड पे कर देंगे, बिकॉज दोज प्रेशर्स आर नॉट वर्थ योर वाइल टू बी हैंडल्ड. नाउ अनदर एलिमेंट ऑफ हैंडलिंग द प्रेशर, इवेंचुअली तो कुछ प्रेशर आपके पास आएंगे और वो आने भी चाहिए एज द CEO, मगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजों को प्रायोरिटाइज करना है और आपको जो है वो डेलीगेशन करनी है. डेलीगेशन इसलिए नहीं करनी कि यू आर शाइंग अवे फ्रॉम डिसीजन मेकिंग और टेकिंग प्रेशर. यू विल टेक दोस डिसीजंस and confront those pressures because they stop at your table at some point in time, but you must encourage your people to handle those pressures at their level too, because this is important for their own personal development and progress. So वहां पर भी बहुत सारी जो इस तरह के प्रेशर्स हैं, जो न्यूसेंसेस हैं, जो आपकी वर्थवाइल नहीं है, वो वैसे ही उसके अंदर रैशन आउट हो जाती हैं और यू डोंट रियली नेसेसरली हैव टू बी डिस्ट्रैक्टेड विद दैट. आखिरी चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने आप को फिजिकली और मेंटली जो है वो अपने वेलबींग का ख्याल रखना है, ताकि प्रेशर तो आने हैं आपके पास, प्रेशर तो गिवन है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हाउ यू रिएक्ट टू दोज प्रेशर्स एंड हाउ यू हैंडल दोज प्रेशर्स. और वो हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी मेंटल कैपेसिटी और फिजिकल कैपेसिटी इतनी हो कि आप उसको हैंडल कर सकें और अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी कर सकें विद दीज अननेसेसरी प्रेशर्स. थैंक यू जफर, थैंक यू सो वेरी मच. मैं सिर्फ आखिरी पॉइंट को पिक करूँगा कि फॉर ग्रांटेड ना लें अपनी हेल्थ को, अपनी वेलबींग को फॉर ग्रांटेड ना लें. वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ट्रस्ट गॉड बट रिमेंबर टू टाई द कैमल.
तो आप ज़रूर अल्लाह पे भरोसा रखें, लेकिन ऊँट को ज़रा बांध भी दें, खुला ना छोड़ें। एक या दो क्विक क्वेश्चंस अगर ऑडियंस के हैं तो हम ले लेते हैं। बहुत क्विकली छोटा क्वेश्चन कीजिएगा, एंड ज़फ़र इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम इफ़ यू कैन बी ब्रीफ। Yes. प्लीज़ गो अहेड। ज़रा चलें आप बोल दें, मैं रिपीट कर लूँगा क्वेश्चन। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब, जब ड्यूरिंग दी क्रैश टाइम जब आपकी फर्स्ट टाइम कॉन्शियस हुआ होंगे या आँख खुली होगी, तो फर्स्ट टाइम कभी जहन में उसी टाइम ये आया था कि शायद मैं सर्वाइव ना कर सकूं या सर्वाइव नहीं कर सकूं, या इस किस्म का ख्याल कि जी मुझे तो कुछ नहीं होगा, आई विल बी ओके, नंबर 1। नंबर 2, कभी ये रियलाइज़ हुआ है उसके बाद, क्रैश के बाद, कि मुझे जब सेकंड लाइफ मिली है तो इसका पर्पस ये है, क्योंकि दूसरे बंदे काफ़ी, आप जैसे कह रहे हैं कि जी 98, 99 बंदे सर्वाइव नहीं कर सके, तो ज़ाहिर भी यू आर द लकीस्ट वन। तो कभी जब आप बंदा आइसोलेशन में बैठता है या कभी इस किस्म का ज़्यान हुआ है कि यार दिस इज़ द ओनली थिंग जिसकी वजह से शायद अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है, तो वो कोई दो किस्म जो मेरे सवाल आते हैं अगर। थैंक यू। ज़फ़र, यू गॉट द क्वेश्चन? थोड़ा सा मुझे अच्छा, तो दो चीज़ें इन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं। पहला सवाल ये कि जब आपका क्रैश हुआ तो क्या ख्याल आया था कि मैं बच जाऊंगा या मैं निकल जाऊंगा, पहली बात। दूसरा सवाल ये कि दूसरा आपने जी कि क्या किस रीजन से सरवाइव किया गया? जी कोई रीजन अल्लाह ताला ने क्यों? अच्छा हाँ, क्या वजह थी कि अल्लाह ने आपको चुना कि आप सरवाइव कर गए? जी अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है, जो आपने सवालात अभी पूछे थे ना वकार, उनमें काफ़ी हद तक ये जाइव भी हो रहे हैं, उसमें डवटेल भी हो जाते हैं। तो पहली वाली बात तो ये कि जी आई एम एन इनवेटरेट ऑप्टिमिस्ट। इवन व्हेन द प्लेन वाज क्रैशिंग आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई वुड सर्वाइव। नाउ यू कैन कॉल इट stupidity, you can call it whatever you like, but I call it a faith in my God, and I was convinced, somehow I was convinced that I would survive. Now there is a lesson in there for the executives too. Even in the worst of situations, please be optimistic. अब बात जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है वो तो गालिबन होगी, मगर कम से कम आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, आप पॉजिटिव रहें उसके बारे में। दूसरी जो आपने बात की, देखिए बात ये है टू बी ऑनेस्ट कि मेरे पास का जवाब नहीं है कि मुझे अल्लाह ताला ने क्यों सरवाइव करवाया या मैं क्यों ज़िंदा हूँ आज, और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं उसको पता भी नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि दैट विल पुट एन अननेसेसरी प्रेशर बेस्ड ऑन माई ओन अजम्पशंस कि गालिबन अल्लाह ताला ने का कोई और ऑब्जेक्टिव होगा कि मैंने खुद अज्यूम कर लिया कि ये ऑब्जेक्टिव होगा और मैं अपने ऊपर वो प्रेशर लेके चलूँ। तो जो प्रेशर हैंडलिंग की एक बात वकार ने की थी, वो प्रेशर हैंडलिंग की एक टैक्टिक ये भी है कि आप अननेसेसरीली अपने जहन में कुछ ना लें। अगर अल्लाह ताला ने आपको, और जो अल्लाह ताला ने मुझे बचाया है, तो वो खुद ही मुझे वो रास्ता भी देगा और दिखाएगा कि वो मुझसे क्या काम लेना चाहता है या मैं क्या काम करने के काबिल हूँ। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिर्फ बड़ा सिंपल है, और ये भी एक लर्निंग है पोस्ट क्रैश वकार के, जो चीज़ मुझे दी गई है मुझे उसको बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी करना है, with all sincerity and honesty, and making lives in difference in people's lives. That's all I think is the purpose of life. Thank you, Zafar. We'll take one more question and then we'll. जी अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, दिस इज़ मोहम्मद रज़ा फ्रॉम मीज़ान बैंक। अच्छा, उम्मी तौर पर इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है वो अपनी जान से होती है, या अगर उसको दूसरे अल्फाज में रखें, सबसे ज़्यादा खौफ अगर इंसान को किसी चीज़ का होता है वो मौत का होता है। किसी को बता दिया जाए कि यार तुम्हें कल मर जाना है, तो उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर सब चेंज हो जाएगा। आपने मौत को बहुत करीब से देखा है, जिसे कहते हैं ना आंखों में आंखें डालकर देखा है, तो अब आपकी क्या कैफियत है उस खौफ के हवाले से कि मौत से डर लगता है या कहते हैं कि निजी आती आ जाए? अच्छा, इंटरेस्टिंगली रज़ा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे कभी मौत से डर लगा नहीं, और उस वक्त भी मुझे कोई डर नहीं था। आई वॉज रेडी टू गो। इनफैक्ट अब तो उल्टा हो गया है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और लाइबिलिटी बन गई है। बिकॉज एट दैट टाइम जब ये क्रैश हो रहा था तो वो मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे आगे से गुजरी, और उसमें
ये आया कि जी यू नो कि भाई ठीक है, सब कुछ ज़िंदगी ठीक गुजर गई. एंड आई टोल्ड माई गॉड कि जी आई एम कमिंग, गॉड यू नो आई एम ऑल रेडी टू कम. तो उस वक्त मैं बड़ा सेटिस्फाइड था. अब हर जगह पे बड़ा ध्यान से कदम रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए हम सबको जाना है, सूनर लेटर, आज कल परसों तरसों, बीमारी से, एक्सीडेंट से, किसी सूरत भी जा सकते हैं. लेकिन उस वक्त जब आप जा रहे हो तो आपके जहन में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता. इसीलिए मैंने वो ड्यूज की बात भी की और वकार ने वो सही पिक की. लिहाजा एक लाइबिलिटी भी मेरे जहन में अब ये है कि या अल्लाह मुझे उसी वक्त ले जाता तो जब सब कुछ ठीक था. अब तुम जब लेके जा रहे होगे तो कोई ऐसी चीज़ मैं ना करूं बिटवीन नाउ एंड देन कि जो मुझे रिग्रेट हो कि ये मैंने काश ये मैं ना करता, काश मैं ये ना कहता. और ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो हम सब एज एन एग्जेक्टिव एंड पर्सनल लाइफ के अंदर अगर हम इसको अपने जहन में रखें कि जी कोई रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए जाते हुए. एक वकार थोड़ा सा डाइग्रेस मैं करूंगा, हालांकि इसी कॉन्टेक्स्ट में है वो, जो एक और लर्निंग थी जो मैं ख़ास तौर से डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ इस फोरम से, बिकॉज यहाँ सारे एग्जेक्टिव्स बैठे हुए हैं और माशाल्लाह इन अ वे यू नो सब वेल टू डू हैं और अकॉम्प्लिश्ड प्रोफेशनल्स हैं. देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है ना वो मैंने अपनी ज़िंदगी में नोट की, वो थी सर्वाइवर्स गिल्ट. वो ये थी कि आई गॉट दिस फीलिंग दैट आई हैव बीन गिवन a special treatment by God. So in a way, I've been treated as an elite. आप सब लोग जो है वो elite है. प्लीज़ अपने जहन में ये चीज़ रखिएगा कि we must appreciate what we've got, but we also need to keep in mind कि हम इसको misuse ना करें और हम ready रहें इसकी distribution के लिए और sharing with everybody. बिकॉज जब आप जा रहे होंगे तो ये कोई चीज़ काम नहीं आएगी, सिर्फ एक चीज़ ही काम आएगी, वो आपकी रिलेशनशिप है विद योर पीपल, योर मैनेजमेंट ऑफ योर फेलो एम्प्लॉयज़, विद योर अदर कॉलीग्स एंड पीपल हु हैव कम इन योर लाइफ. इट्स द क्रक्स ऑफ द मैनेजमेंट यू नो का उसूल टू माई माइंड. Thank you, Zafar. Thank you so very much. Any parting comments very quickly in few seconds? जी मैंने वो जिस तरह ये नो रिग्रेट्स वाली बात इत्तेफाक से राजा साहब ने पूछ ही ली थी तो मैंने कवर कर ली, और जो इस सर्वाइवर्स गिल्ट वाली बात थी वो भी मैंने आपसे शेयर कर ली. मेरी और वो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में करना चाहता था कि जिस नाजुक मोड़ से, जो पिछले वाले सेशन में भी बात हो रही थी, जिस नाजुक मोड़ से हमारा मुल्क गुजर रहा है, वो मुल्क को तो छोड़िए, जिस नाजुक मोड़ से हमारी सोसाइटी गुजर रही है और हम सब गुजर रहे हैं. आई थिंक यहाँ हम सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट वी हैव टू अपने अपने ताईं जितना जितना शेयर हम ले सकते हैं ऑफ डूइंग सेक्रीफाइस इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर फ्यूचर कम्युनिटीज़ एंड फ्यूचर जनरेशंस. वो बड़ा ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर यू नो फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन. तो प्लीज़ उसको जहन में रखिएगा. नाजुक मोड़ तो हम पता नहीं जब से पैदा हुए हैं नाजुक मोड़ सुन रहे हैं, मगर अब इस वक्त जो है वो वाकई ऐसा लगता है कि अब इसके आगे हम सब पे जिम्मेदारी है कि वी हैव टू गिव बैक एज मच एज वी कैन इन आवर ओन कैपेसिटी, फाइनेंशियली और अदरवाइज. थैंक यू वेरी मच जफ़र. थैंक यू. तो वो जफ़र ने जो आखिरी बात की, तो वो जैसे किसी ने कहा था कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते. हम अपना काम तो करें. नाजुक मोड़ है 76 साल से, अब थोड़ा सा और नाजुक हो गया, ऑक्सीजन वगैरह की कमी है शायद इस वजह से, लेकिन ये किसी ने नहीं रोका कि हम जो काम कर सकते हैं वो करते रहें. ये आपको कोई नहीं रोकता. एंड दैट अपॉर्चुनिटी is always available to people, especially those people, and many of them are sitting here, who God have chosen to progress in life and to make an impact. Thank you so very much, Zafar. We missed you here physically, but what a pleasure talking to you. My apologies for not being there. In fact, मुझे तो मैं लाहौर में भी नहीं हूँ, मुझे आना पड़ गया था मुल्तान में. There was a death in very close friends family. But I just want to make it a point
मैं वो जनाजा तो भी बाद में है कि मैं पहले पहुंच जाऊं and I won't miss this session at all. I was really looking forward to it. So thank you very much once again. Thank to you so Waqar, very much. Thank you, Wali everyone. Saab and, Thank you. You've been a great audience. Thank you so very much. Thank you very much, you. Zafar Saab. Thank you very much, Waqar Saab.